A very good afternoon and warm welcome to all. I am Arun Kumar Singh, Associate Dean ICFI Tech, the ICFI University Jaipur. On behalf of the ICFI University Jaipur, I take the honor to welcome all our esteemed participants and guests. Friends, allow me the privilege to introduce our Honorable President, Dr. Rajesh Kothari. He has more than 38 years of teaching, training, research, and consulting experience. He has supervised more than 33 PhD doctoral students, published many research papers of national and international repute. He had executed numerous consulting assignments sponsored by SIDBI, IFCI, UTI, etc. He has successfully completed two tenure as professor and director at R.A. Poddar Institute of Management and Dean, Faculty of Management Studies, University of Jaipur, University of Rajasthan, Jaipur. He has also been associated as subject expert with Himachal Pradesh Public Service Commission, Rajasthan Public Service Commission (RPSC), screening committee member for private universities in the state of Rajasthan, member executive committee, Rajasthan Energy Development Agency (REDA), and many more. He has also been advisor to eminent groups and professional bodies like JKD Pearl India Private Limited, Mewad University Chittorgarh, Narayana Group Jaipur, and many more. We welcome you, sir. Thank you, Arunji. Sir, now it's over to you, sir. Thank you, Arunji. It's my privilege. It's my privilege. It's my pleasure. It's my honor to welcome all the esteemed guests who have readily agreed to discuss something called contemporary issues. We are all have been victim or opportunist because of pandemic. And this pandemic has given us a chance to meet each other. Let us discuss, let's work out what best could we do for the economy. In fact, there are three major issues which I intend to take up today, but that will come once after another one. Right now, let me talk about ICFI University. Well, I currently am president of ICFI University Jaipur, and ICFI University is a part of ICFI group having 11 universities, 9 business schools, 7 tech schools, 5 law schools across the country. We are into education for the last 36 years. So I had this organization called ICFI University Jaipur. Before that, I was at R.A. Poddar Institute of Management. There I have served nearly 36 years. Now, we have chosen this topic deliberately, rebooting Indian economy. And therefore, at the outset, there could be no better persons than you who can talk about openly, open heart, and can find out some remedy, some path to move on. After all, this pandemic would have given some crisis. At the same time, is going to offer umpteen opportunities. One, I believe whenever there is a crisis, whenever there is a problem, there provides an ample opportunity. And we in business understand life is nothing but how fast, how quickly you capitalize the opportunities. One. So to begin with, it's my honor to welcome Shri N.K. Jain, Chairman, President, Employer Association of Rajasthan, a very successful entrepreneur, prolific speaker, widely traveled. And if you go through his mails, his observations, they touch your heart, they guide your mind, and they make your soul to be, where it has to be. जैन साहब स्वागत है आपका और आपका बहुत बहुत आभार कि आप ICFI यूनिवर्सिटी को पैट्रोनाइज करते रहते हैं. The other speaker to me is other speaker to me is Shri Rajat Agrawal ji. Rajat is no doubt a technocrat, but जिस हिसाब से उन्होंने ग्रेविटी इंडिया का फ्लैगशिप परचम पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व फैला रखा है, एक सैल्यूट तो रजत जी के लिए बनता है. You have been inspiring to many more young technocrats. बच्चों को आप बहुत बहुत प्रेरित करते हैं. And if I go through a biodata, it's who's and who's, but I can say you have been past president with CII, and more importantly, you have been creating job for millions in India and across. Sir, आपका स्वागत है. The third speaker to us is, welcome sir, Sanjay Rajawat. A very soft spoken,
but real financial wizard. I have seen Sanjay ji for last 20 years. I have seen him growing from brick to brick, and he happens to be, say president of Deutsche Bank India, and currently he has started Wonder Homes belonging to RK Group. संजय जी में जो बात है कि बहुत सूक्ष्मता से हर चीज का निरीक्षण करते हैं और he just find out what is there. He has financial acumenship and currently he is CEO of Wonder Homes Jaipur. संजय जी आपका स्वागत है. The other speaker for the day is Ashutosh Goyal, the young dynamic entrepreneur cum business person. Ashutosh is a graduate from Duni School, Dehradun. Then he went to Indiana University, from where he did graduations with management and psychology. And currently, he's the director with Ananta Group of Hotel, the flagship of Rajasthan. And last but not least, we have Dr. Saket Mathur, the strategy consultant. Saket ji, ये वो व्यक्तित्व है who have been entrepreneur, who have been educationist. और मुझे याद है, I'm just talking about 90s, 1990 and more precisely. He was the first who could read the writing on the wall कि आने वाले दिन में dot matrix printer काम नहीं करेंगे. So he set up the finest, what I can say, ledger printing outfit in Japan. And those days, Raja ji, let me share with you, एक पेज के 50 रुपए लिया करते थे, एक पेज के, right? That was the time. But he could visualize कि आने वाला दिन किसका होने वाला है. साकेत एक विजनरी है और सबसे खास बात मैं साकेत जी को जब से जानता हूँ एज एजुकेशनिस्ट, एज एंटरप्रेन्योर, एज द पर्सन who easily go getting one. मतलब इस बंदे में जो खासियत है, ये राख के ढेर में से, भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ निकालने की क्षमता रखता है. यानी अगर मैं मुझे कहा जाए कि जयपुर में आप किससे मिलना है, किससे समझना है, जयपुर को समझना है, जयपुरियत को समझना है, मेरे ख्याल से there could be no better person than Saket. And Saket is a very good singer. वे इनके बहुत से prolific hobbies हैं. एक, he is a very good singer and he is a very good anchor too. And I'm sure this gallery speaker has indeed made us proud. We feel proud of you. If our university feels obliged to you. So to begin with, sir, I think I request NK Jain साहब to start. कि सर आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर इकोनॉमी को थ्रू इंडस्ट्री हम लोग कैसे बूस्ट करेंगे? क्या होने वाला है सर? नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, माल बनाते माल बिकता नहीं है, जाए तो जाए कहाँ? सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, हम ये कहते हैं निर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भर के बाद दूसरी बात करेंगे, पहले जिंदा रहने फिर आत्मनिर्भर हम बात सोचेंगे. सो मैं इस ओपनिंग रिमार्क के साथ मैं एनके जैन साहब से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पे आप एज इंडस्ट्रियलिस्ट, एज प्रेसिडेंट ऑफ EAR अपना प्रकाश डालिए सर, ताकि जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, they should still feel benefited because they are listening horse's mouth what's going to take place in the industry, sir. Honorable Shri NK Jain sahab. Thank you Kothari ji. I am audible? Yes, you are 100% audible sir. एक आपकी आवाज है जो गूंजती है सर. अच्छा. देखिए आज का जो सब्जेक्ट आपने रखा है, मैं समझता हूँ बहुत ही ज्वलंत सब्जेक्ट है, रीबूटिंग इकोनॉमी थ्रू इंडस्ट्री. जी. बट इंडस्ट्री के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है पिछले 100 दिनों में, वो आपने देखा होगा कि जो बैकबोन होती है इंडस्ट्री की, जो बैकबोन है इकोनॉमी की, हिंदुस्तान में जब भी बात होती है इंडस्ट्री की तो यही कहा जाता है कि MSME इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, MSME इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. तो उस बैकबोन के ऊपर ही मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है. क्यों हुआ है? एक पेंडेमिक का जो वातावरण बनाया गया हमारे हिंदुस्तान में, न कि पूरे विश्व में, जिस तरह से भय पैदा किया गया, मैं समझता हूं इस तरह के भय को पैदा करने की कोई जरूरत नहीं थी. इससे भी और ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं, खतरनाक ऐसी चीजें हैं जिसमें डेथ होती हैं. सिर्फ एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोग साल में मरते हैं और उसमें भी मुख्य कारण होता है कि हेलमेट नहीं लगाते. इसकी वजह से आज भी देखने में आ रहा है कि लोग मास्क लगा के चल रहे हैं लेकिन हेलमेट लगा के नहीं चल रहे. इसका मतलब वहां भी जागरूकता की कमी है. सेम इज द मैटर इन केस ऑफ कोरोना. यहां भी जागरूकता की कमी है. हमें सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना था. थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखें, अपने हाथ बराबर धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें और फेस पे मास्क लगा लें. बाकी इस तरह के लॉकडाउन का, पूरे विश्व को बंद करने का,
पूरे भारत के बाजार को, पूरी इंडस्ट्री को बंद करने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं था, और ये सबसे बड़ा गलत निर्णय रहा है। जो लोग कहते हैं ना लॉकडाउन की वजह से कोरोना कम फैला हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं यदि 3 रीजन को हम फॉलो कर लेते, 3 तरह की सेफ्टी प्रिकॉशंस हम अगर रख लेते, तो ये कोरोना इतना फैलता ही नहीं जितना अभी फैला है। और अभी भी मैं देख रहा हूं जब बाजार में निकलते हैं तो लोगों में जागरूकता की कमी है, उनको समझाइश करनी पड़ेगी, उनको स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी। भीड़ सर जैन साहब, सर मेरा हाँ, मेरा निवेदन आपसे सर ये है कि इस हाँ, पैंडेमिक का अपने इंडस्ट्री को कैसे रीबूट करें, कैसे इकोनॉमी में बात हाँ, करें, मैं क्योंकि उसी पे आ रहा हूँ सर। जी मैं जी पहले जी तो सर, ये बता रहा हूँ कि ये पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमी डाउन क्यों हुई। तो जी जब एक तरफ लॉकडाउन लागू किया गया और सारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, सारी जी इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन, उनका जो पूरी सप्लाई चेन थी वो सारी बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया, आगे से ऑर्डर मिलने बंद हो गए, और पैनिक इतना ज्यादा हुआ कि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे वो भी बंद हो गए। एक्सपोर्ट के क्लाइंट्स ने भी उनको बंद कर दिया ऑर्डर देना, वहां पर भी पैनिक हो गया। तो इस पैनिक की वजह से, जो पेंडेमिक का पैनिक था, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, हमारी इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। लेकिन आप जानते हैं ना, भारत के जो इंडस्ट्री उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या खास करके राजस्थान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ की मिट्टी में फर्टाइलिटी है, यहाँ की मिट्टी में फर्टाइल ब्रेन है, और हम आपदाओं में अवसर ढूंढने में मास्टर है। और आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी जो रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने पीपीई किट बनाने शुरू कर दिए जो आज की जरूरत थी। आज से पहले हिंदुस्तान में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। उन्होंने 7,000 करोड़ के पीपीई किट बना दिए 2 महीने में, 5,000 करोड़ के मास्क का प्रोडक्शन कर दिया 2 महीने में, सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन कर दिया 3,000 करोड़ का 1 महीने में। तो जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन इंडस्ट्री ने किया है, मैं समझता हूं इसी तरह के और डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, नई सोच की आवश्यकता है। हमें एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो चाइना से एक्सपोर्ट होते थे, क्योंकि पूरे विश्व में इस समय चाइना के अगेंस्ट में आपने देखा होगा सेंटिमेंट्स निगेटिव हैं। लोग चाहते नहीं चाइना का सामान खरीदने, बहुत से देशों ने तो चाइना के प्रोडक्ट को बैन भी कर दिया है। तो ये क्या एक अवसर नहीं है भारत की इंडस्ट्री के लिए? हम एक लिस्ट उठाएं क्या क्या जैन प्रोडक्ट। साहब, हाँ, मैं यहाँ आपको अगर रोकना चाहूँ तो आपके हाँ, व्याख्यान से मुझे 2 बात समझ में आती है कि भाई ये हाँ खामखा सरकार ने एक भय का माहौल पैदा करा हुआ है, हालात सर, इतने गंभीर सरकार ने नहीं नहीं, है। मीडिया ने मीडिया किया है ने सर। करा हुआ है, चलिए हाँ, चलिए हाँ, मीडिया को मान हाँ, लीजिए, सरकार को आप हाँ, बचाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा के ऊपर है, पर हाँ, महसूस कर रहा हूं मैं कि सरकार को हाँ। बचाना भी हमारी मजबूरी हो सकती है। मैं नहीं, कहने नहीं, की कोई कोशिश कर रहा हूँ मजबूरी कि नहीं है सर हमारी। अच्छा ठीक है, मैं समझ, हाँ, ये भी हाँ, एक स्टेटमेंट अपन को देना पड़ता है अक्सर कि सरकार को बचाने हमारी हाँ, कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं आपको एक हाँ, बात कहना चाहता हूँ सर, आपने कहा कि जब हाँ, पेंडेमिक का भय हमने क्रिएट करा, मीडिया ने करा, वो ऐसा करा, भय की ऐसी बात नहीं थी, ऐसी जरूरत नहीं थी। तो मैं हाँ, आपसे समझना चाहता हूँ कि आपने 2 बात बड़ी अच्छी कही इस मौके के ऊपर कि एक क्राइसिस जो था, उस क्राइसिस हाँ, को हमने एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा। कैसे? हाँ, पीपीई किट बनाकर, सैनिटाइजर बनाकर, right, और हमने शायद और बहुत सी चीजें हमने करने की कोशिश करी है। हाँ, रजत जी, हाँ, इसके ऊपर मैं आपके एक त्वरित टिप्पणी चाहता हूं कि जो जैन साहब ने कहा उसके ऊपर आप कैसे इस चीज को देखते हैं, पेंडेमिक और ग्रेविटी इंडियन पेंडेमिक एंड हाउ वी इंटेंड टू कम बैक टू द सीन बिकॉज ऑफ योर इंडस्ट्री। रजत जी। थैंक यू कोठारी साहब। बेसिकली अगर ब्रॉडर कैनवास देखें तो इंडिया की जीडीपी 2.93 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन 60% सर्विसेज का होता है, 25% इंडस्ट्रीज और 15% खाली एग्रीकल्चर सेक्टर है। ब्रॉडर 3 सेक्टर्स में अगर अपन बांटे तो सो पोस्ट पेंडेमिक एग्रीकल्चर 100% निश्चित रूप से ग्रो करेगा, 3 to 4% अराउंड। इंडस्ट्री श्रिंक करेगी 5 से 6%, और सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी पे आएगा। सो अगर देखें इंडस्ट्री साइड में तो जो मेजर पेन एरिया हैं वो एक तो ड्यू टू रिडक्शन ऑफ परचेज पावर एक सरप्लस प्रोडक्शन क्रिएट होगा पूरे मार्केट में, इन्फ्लेशन को लो करेगा, ऑब्वियसली फिर कमोडिटी प्राइसेस लो होंगे, और इंडिया में जनरली मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो एमएसएमई की बात अभी जैन साहब ने की, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड को सर्व कर रही है। वी आर मेजरली इंडस्ट्री साइड देखें अपन तो
जहां पे कि स्किल्ड मैन पावर, एक बड़ा कॉमन सा फ्रेज है कि लेबर हमारी स्ट्रेंथ है इंडिया की, बट जस्ट ए रॉ लेबर मेरे हिसाब से इंडिया की स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। रादर वो आगे आने वाले टाइम में लायबिलिटी है, जहां टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री मूव करेंगे आगे, वो लायबिलिटी होगी। तो स्किल्ड मैन पावर निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एसेट होगा और स्किलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आगे। सेकंड, स्केलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव होना, या तो आप एक्सपोर्ट करोगे और नहीं कर पाओगे तो फाइनली श्रिंक होगे, क्योंकि कोई और कॉम्पिटिटर आके आपकी कंट्री में आपको एलिमिनेट करेगा स्लोली। सो अगर जस्ट मैं एक आर्टिकल कल पढ़ रहा था, जहां संडे को रहा था, कि फॉर्च्यून 500 सीईओज के क्या कमेंट्स हैं, और वो मुझे हमेशा कुठारी साहब एक्साइट करते हैं, क्योंकि वही आगे के ट्रेंड को काफी कुछ प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं विद देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटी, देयर रिसोर्सेज। सो उनके हिसाब से 75% बहुत कमिटेड थे कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको। 53% कह रहे थे एम्प्लॉयमेंट ग्लोबली विल रिड्यूस बाय 25%। सो ये 25% एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होना इज ए बिग टास्क, और स्पेशली जहां अनस्किल्ड लेबर या मैन फोर्स ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज्यादा है। अब अपन बात करें कि साहब चाइना से डिसइन्वेस्टमेंट होगा, इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, उनमें भी उन सबके बड़े क्लियर कमेंट थे और बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट थे कि इंडिया में जस्ट 2.6% इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, चाइना में 9% जाएगा, 11.5% अदर देन चाइना और इंडिया में एशिया में आएगा, रेस्ट यूरोप में जस्ट 2.6% अगेन, और रेस्ट अमेरिकाज में है। क्योंकि नेशनलिज्म, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए। उनके लिए जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स थे टू सर्वाइव इंडस्ट्री, वन वाज द कैश फ्लो, जो नंबर 1 उनका कंसर्न था। सेकंड, उनको सप्लाई चेन इंटैक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। वो अब महसूस कर रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन का एक एनवायरनमेंट और फेज आगे डेवलप होने जा रहा है। और थर्ड कंसर्न वाज द गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव रोल और कुछ इंडस्ट्रीज की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे होना। इंडियन सिनेरियो में इसको अपन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी कोठारी साहब बिल्कुल निश्चित रूप से इसी क्लॉज में आता है। जी। और तो पोस्ट कोविड एक जो सोच है मेरे हिसाब से, जितने भी डिस्ट्रक्शंस हमेशा अपॉर्चुनिटी और देते हैं आपको ग्रो ड्रामेटिकली। ये दोनों तरीके से हो सकता है, आपको बंद भी करा सकते हैं और आपको एक कमाल की अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे ग्रो करने के लिए। एक डार्विन की बड़ी सिंपल थ्योरी है और मुझे हमेशा बड़े दिल से हमेशा पसंद आती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक बड़े सिंपल कहावत थी कि हर बिजनेस लाइन में, चाहे वो हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री हो, एजुकेशनल आपकी इंडस्ट्री हो, या कोई भी और, रियल एस्टेट टू एनीथिंग, रोज 5 नए खुलते हैं कारी साहब और 5 ही बंद होते हैं। इट इज ओनली द मैनेजमेंट विच मेक्स द डिफरेंस। एब्सोल्युटली राइट। और इस पेंडेमिक के बाद अब वो 5 की जगह 30 क्लोज रोज होंगे और 5 कमाल के ग्रो करेंगे। अगेन द मैनेजमेंट विच इज मेक्स द गोइंग टू मेक द डिफरेंस। थैंक यू अजय जी। मैं आपको इंटरव्यू करना चाहूंगा। सर आप बोलिए। मैं आपको इंटरव्यू करना चाहूंगा कि जो बातें आपने कही, टेक्नोलॉजी, डिसरप्शंस, अपॉर्चुनिटीज एंड दी जो 5 कमाल के स्टार्टअप जो रोज खुलेंगे, वो रोज 30 खुलने वाले स्टार्टअप को भारी पड़ेंगे। आई थिंक यू हिट द बुल साइज ओनली एंड यू जस्ट टॉक अबाउट कि कैसे इस देश के अंदर चेंज आएगा। यू टच द पॉइंट सर। आई कम बैक टू यू सर। मैं अपने जो दूसरे गेस्ट हैं संजय जी, हाउ डू यू फोरसी दैट विल एबल टू ग्रो, बिकॉज यू लुक आफ्टर फाइनेंस सेक्टर और फाइनेंस बैकबोन। और अब अभी जो सबसे हालत खराब है, इसी सेक्टर की हालत खराब है। लिक्विडिटी नहीं है, आरबीआई रेपो रेट कम करते जा रही है, उसके बावजूद क्रेडिट का ऑफटेक नहीं है। एंड यू लुक आफ्टर हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग में भी इतनी जबरदस्त डिमांड है पर बाहर आगे नहीं आ रहा। सो हाउ डू यू फोरसी कि जो रीबूटिंग इकोनॉमी है से थ्रू हाउसिंग, आप उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कोठारी साहब, आपने अपॉर्चुनिटी दी है इतने सब लोगों के साथ बात करने की।
जी। मैं बाय नेचर ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मेरा ऐसा मानना है, जो जैन साहब ने भी कहा कि आई थिंक कोरोना ने उतना हार्म नहीं किया जितना कोरोना के फियर ने हमको हार्म किया है। तो अच्छा, तो थोड़ा और हमारी गवर्नमेंट ने, आपने गवर्नमेंट पे भी कमेंट किया था, हमारी गवर्नमेंट ने काफी हद तक ठीक किया है, पर कुछ एक चीजें शायद वो बेहतर कर सकते थे। अच्छा, स्पेशली ये ऑप्टिमिज्म है आपका? हाँ, ये ऑप्टिमिज्म है आपका, गुड गुड। देखिए परफेक्ट कहीं नहीं होता है। आज जी। आज बहुत सारे कंट्रीज हैं, हम उनके कंपैरिजन में इसको कोरोना को बेहतर तरीके से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन बराबर। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके कंपैरिजन में हम नहीं कर पा रहे हैं। जी। वियतनाम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है। far better they have done, and I Yes. think कोरोना के इम्पैक्ट को हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते थे अगर हमने एक सिंपली 22-23 मार्च की जगह अगर हमने 22-23 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी होती तो। जी। तो अब लेकिन लॉकडाउन इज नॉट अ ऑप्शन, उसने सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दी है हमारे देश को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लोगों को, हम हमारी हैबिट्स, हमारे बिहेवियर्स को चेंज करें। साथ में हम गवर्नमेंट जो भी इवेंचुअलिटीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, जैसे पीपीई किट मैन्युफैक्चर करना, मास्क मैन्युफैक्चर करना, वेंटिलेटर्स, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को करना, ठीक करना, एक बफर क्रिएट करना हर जगह पे। तो ये सब अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन ने दी है। छोटा सा एग्जांपल है, लॉकडाउन हमने तब लगाया था जब हमारे यहाँ 1000 से कम कोविड पॉजिटिव थे, और लॉकडाउन हमने खोला है जब 2,75,000 कोविड पॉजिटिव थे। तो ये गलत हो गया, सही हो गया? नहीं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये ठीक है। अभी जैसे हम कोविड का जो सिनेरियो है ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी फाइनेंशियल विजार्ड, कोई भी आके अगर ये कहता है मुझे कि अब ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा, तो किसी के पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड है ग्लोबल लेवल पे। राइट। हमारा जो इमीडिएट लर्निंग है वो हम इमीडिएट लर्निंग ले सकते हैं कि दूसरे कंट्रीज में ये किस तरह से, जहां पे कोविड का इम्पैक्ट हमसे 1 महीना या 2 महीना पहले शुरू हुआ और अब कहां हो रहा है। तो मैं जैसे एग्जांपल लेना चाहूंगा यूएस का या यूरोप का, उनमें वो भी बहुत ज्यादा बैडली इम्पैक्टेड है कोविड से, लेकिन आज यूएस का मार्केट ऑल टाइम हाई है नैस्डैक, और ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल पे आ गया है, और यूरोप के मार्केट्स ऑलमोस्ट उसी लाइन पे हैं। उसके क्या रीजन है? उसके 2 रीजन हैं। एक तो जो कोविड का जो कर्व है वो अब वहां पे पीक से निकल के अब डाउनवर्ड ट्रेंड्स पे चला गया है। इंडिया में अभी वो नहीं हुआ है, और अभी हमारे यहाँ डिबेट हो रही है कि ये पीक कब आएगा, मे बी 1 महीने बाद है या नवंबर है। हाँ जी जी, है ना। दूसरा चीज, इन वहां पे गवर्नमेंट्स ने प्रोएक्टिवली विद सेंट्रल बैंक बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड्स के साथ रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए हैं। उसके कारण इंडस्ट्री और मार्केट में और कंज्यूमर्स में ऑप्टिमिज्म है, और वो लोग इसको अच्छी तरीके से झेल पा रहे हैं, जो हमारे यहाँ शायद नहीं है। ये 2 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। तो संजय जी, आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने जो लाखों करोड़ का पैकेज जो डिस्क्लोज किया था या अनाउंस किया है, वो नाकाफी है? नहीं, और कुछ पैकेज के अलावा वो आई थिंक इस ओकेजन के लिए ठीक नहीं है। उसमें काफी कुछ मीडियम टर्म के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमें जो भी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, कोविड के लिए। यानी वेंटिलेटर से खड़े हो जाए एक बार। हाँ, अगर अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पे है तो एक बार वेंटिलेटर से खड़े हो जाए। जी। तो अभी कंट्री में फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी का कोई क्रंच नहीं है, किसी तरह का कोई क्रंच नहीं है लिक्विडिटी सिस्टम का, लेकिन रिस्क अवर्जन हाईएस्ट लेवल पे है। जी। आज आपको छोटा सा एग्जांपल है, आज बैंक्स हमारी इंटरेस्ट रेट लोएस्ट हो चुकी हैं। जी। आज होम लोन की रेट 7% से नीचे जा चुकी है। जी। जो शायद अपने पिछले 10 साल में नहीं गई थी। जी। आज बैंक्स लोन देने की जगह 11% पे वो एक एमएसएमई को या एसएमई को लोन देने की जगह 3.35% पे वो रिजर्व बैंक में फंड रखता है, 7 लाख करोड़।
जी, अगर वो थ्योरेटिकली अगर वो 5% क्रेडिट लॉसेस जो कि नहीं हुए हैं आज तक हिंदुस्तान में, जी हिंदुस्तान में हाईएस्ट क्रेडिट लॉसेस 2-3% तक जाते हैं, बिल्कुल, आज बहुत ज्यादा है। और 5% भी अगर एज्यूम करें तो भी वो प्रॉफिटेबली 6 लाख करोड़ को लगा सकते हैं जी एमएसएमई और एसएमई में, पर वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। ये रिस्क अवर्जन की सिचुएशन है। मे बी आप यूँ कहना चाहते हैं कि जो हालात हैं, न केवल अपॉर्चुनिटी दी है, पर लोगों में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को भी इसने खत्म कर दिया है। Banks have फाइनेंशियल become very इंस्टीट्यूशन, conservative. Yes, banks have become very conservative. They don't want to lend out any money to anyone. Result, they have to pay interest, but they are not making enough money. So can we read writing on the wall? In days to come, the profitability of the bank will not be as good as it sounds right now. How do you react, sir? एब्सोल्युटली। नाउ उसमें स्टेप है, आज भी हिंदुस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें 70% बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, 25% प्राइवेट सेक्टर है और 5% फॉरेन बैंक्स हैं। जी, तो आप अभी भी 70% गवर्नमेंट सिस्टम को, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हो जी। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ जी। Thank you, Sanjay ji. At this point of time, I like to invite Ashutosh. Ashutosh, तुम क्या सोचते हो? You run the industry and you run the hospitality industry, यानी अतिथि देवो भव। अब अतिथि आएंगे या नहीं आएंगे, तो how do you foresee कि जो अपने घर के पावने हैं उनको जिमाओगे या अभी भी किसी अतिथि बाहर से वेट करोगे? How do you look at this situation and how do you intend to react on, Ashutosh? थैंक यू डॉक्टर कोठारी। पीएम मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में बोला था दैट हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इज वन ऑफ द 5 पिलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट पिलर इज डीपली शेकन टुडे। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो हॉस्पिटैलिटी इन इंडिया वाज बूमिंग। अपने बहुत सारे डोमेस्टिक एंड फॉरेन क्लाइंटेल्स आ रहे थे। यू नो, इन द बिगिनिंग ऑफ जनवरी ओनली कि मेरे को सारी पूरे साल की बुकिंग्स आने लग गई थी, दिसंबर तक की बुकिंग्स आने लग गई थी। सो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग year for us, and it was a promising year, and we were really looking forward to it. But this situation happened, and it's better to bite the bitter pill and accept the reality and embrace the truth. तो अभी मैं बहुत सारे होटेलियर से बात करता हूँ, अपने बिजनेस मॉडल को भी बहुत स्टडी कर रहा हूँ। वी आर वर्किंग ऑन रीस्ट्रक्चरिंग इट। सो देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स जो हॉस्पिटैलिटी एज अ होल टुगेदर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख भी रखे हैं। तो क्या होगा, फ्रॉम हाई टेक सर्विस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स टचलेस सर्विसेज। नो टच प्रोटोकॉल्स विल कम इनटू प्लेस। यू वुड सी डिजिटल कीज, यू वुड सी चेक इन एंड चेक आउट विदाउट एनी टच, you would see flexi glass partitions, you would see AI powered concierge with voice enabled controls, contactless payments aa jayenge. This situation also has ripples across other aspects of the industry. Takeaway has become the new restaurants, and homes has become the new epicenter of our lives. QSR will now stand for quality, safety and reliability. The big fat Indian wedding will go on a diet. 50 से ज़्यादा लोग allowed नहीं हैं. माइस जो कि कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए है, वो दैट विल गो इन अ कोमा। आशुतोष, नॉर्मली इंडियन वेडिंग का मतलब होता है नॉट लेस देन 1000 प्लस। सो बाकी 950 को हम लोग क्या गिफ्ट पैक भेजेंगे थ्रू आपका टेक अवे विल टेक इट शेप। हो सकता है ऑनलाइन वेडिंग्स हो, कुछ आइडिया नहीं है, वी डोंट नो। नहीं है आपको। फिर we have to like redesign some services also, you know, that जैसे जो in room dining होती है उसे भी redesign करना पड़ेगा। But all this has to happen without compromising the industry's integrity. Hospitality has a very strong integrity. अगर वो अपन को break किए बिना आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, which is very important. और मैं ये भी बोल सकता हूँ that you know health and wellness will be given a lot of priority. There will be a social distance from junk food, Dr. Kothari. Definitely जंक फूड बहुत लोग अवॉइड करेंगे। रूम सर्विस के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, नॉक एंड ड्रॉप, ग्रैब एंड गो, ऑनलाइन ऑर्डरिंग विद QR कोड्स विल बिकम द ट्रेंड। फिर इन द लॉन्ग टर्म विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन रीडिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग्स ऑल्सो। विंस्टन चर्चिल ने कहा था दैट वी शेप बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग शेप अस। तो आगे जाके हो सकता है हॉस्पिटैलिटी में we'll be using antimicrobial material to build our buildings.
और फिर हॉस्पिटैलिटी, हमेशा मैं सोचता हूँ कि हॉस्पिटैलिटी सेल्स स्लीप, तो स्लीप इज टू योर वेलनेस, हाइजीन, तो स्लीप पर भी बहुत एम्फेसिस होटेलियर्स देंगे डेफिनेटली. Ashutosh, you sound more as a wellness expert than the hotelier one. Anyway, it was nice listening to you. While I move on to Dr. Saket Mathur. Dr. Saket Mathur, you have seen all the experts' view, starting from N.K. Jain साहब से लेकर रजत जी ने जो माइंड बॉगलिंग बातें कही है, उसके बाद संजय जी ने बताया कि भाई ना हम लोग इतने सारे पैसे में बैठे हुए हैं पर कोई लेने वाला नहीं है, हम लोग रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं, जोखिम कौन ले, एंड बैंक आर प्रिपेयर्ड टू लूज देयर मनी. फिर आशुतोष ने एक बिल्कुल नई रेसिपी ड्रॉ करी हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज की, भाई ये दो पिलर हुआ करते, टूरिज्म एंड दिस हॉस्पिटलिटी वन. एंड इस पूरे जो एक माहौल से बना हुआ है, यू एज स्टडी कंसल्टेंट, इस माहौल को किस नजर से देखते हैं और इस नजर में आप क्या देख पाते हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ होंगे? डॉक्टर साकेत माथुर. थैंक यू वेरी मच सर. मेरी आवाज आ रही है क्या सर सब लोगों को? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? 100%. हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी लग भी रही है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोठारी सर का, जो कि मेरे हमेशा से गुरु रहे हैं, और इन्हीं के गाइडेंस में और इन्हीं की छत्र छाया में मैंने अपनी रिसर्च, अपनी पीएचडी सबमिट की थी और मेरे को अवार्ड हुई थी. सर मैं अपनी बात थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कहना चाहता हूँ, और मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजी रहेगा, और लेकिन मैं थोड़ा सा हटके बात करना चाहता हूँ. मैं बात करूंगा सर उस क्लोज डोर इकोनॉमी की जो हमारी कंट्री में पहले प्रिवेल करती थी, एलपीजी से भी पुराना वाला एरा. जब हम बात करते थे, जब हमारे देश में ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, तो एक बजाज के नाम से स्कूटर आया करता था, एक एम्बेसडर के नाम से गाड़ी आया करती थी, और फिएट के नाम से गाड़ी आती थी. वो स्कूटर कभी भी बिना टेढ़ा हुए 15 किक खाए बिना स्टार्ट ही नहीं हुआ. उसके बावजूद साकेत जी एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह बिना खाए कुछ काम नहीं करेगा. इज दैट? एग्जैक्टली. फिर भी सर हमने उस स्कूटर को इतना तरीके से संजो के रखा कि हम जैसे ही हमारे घर में बच्चा पैदा होता था, हम उस स्कूटर की बुकिंग कराते थे, और वो 14-15 साल में उस स्कूटर की डिलीवरी आती थी, और हम उसको यूज किया करते थे. और उसका अगर हमको काम नहीं लेना होता तो उसका जो अलॉटमेंट लेटर हमको मिलता था, हम उसको प्रीमियम पे बेच दिया करते थे. दिस वॉज द एरा. ये हमारे कंट्री में व्यापार, बिजनेस, इकोनॉमी और वो सब चीजों के चलने का तरीका था, ढर्रा था. हम बैंक्स की बातें करते थे, हम लाइसेंसिंग की बातें करते थे कि भाई इसके पास लाइसेंस है, अखबार वाला अखबार को बिना छापे उस कागज का कोटा बेच दिया करता था. उस तरह से हमारी इकोनॉमी चला करती थी, और हम वो एक एरा था, वो एक टाइम था. उसके बाद कुछ समय के बाद हमारे देश में एलपीजी की बात होने लग गई. 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करी. ये वैसे तो एक बहुत ही कमाल का एक वेलकम स्टेप था, लेकिन उसका प्रभाव हमारी कंट्री पे और हमारी कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स पे और हमारी कंट्री की इंडस्ट्री पे क्या पड़ा, वो हम सभी जानते हैं. कि उसमें चूंकि हम लोग कभी भी एक लंबे विजन के साथ, एक सस्टेनेबल ग्रोथ की सोच के साथ कभी सोचते ही नहीं. हमारी सोच है तात्कालिक. हमारी चाहे तो हम इंडस्ट्री की बात करें, जो भारतवर्ष के व्यक्ति का जो कैरेक्टर है, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव होकर बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक शिक्षक की तरह से, एक एकेडमिक डिस्कशन की तरह से बात कर रहा हूं. किसी को कोई गलत नहीं यहां बोल रहा. लेकिन हमारी सोच क्या है कि हमको सिर्फ तात्कालिक सोच से सोचना है. हम कभी ये नहीं सोचते कि आज अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं या आज अगर मैं ये सर्विस की बात कर रहा हूं तो ये कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, इसके 10 साल के बाद इसकी क्या शक्ल होगी. मैं इस पर बात ही नहीं करता. मेरा तो काम चलता है तो मैं उस काम को चलाता रहता हूं. एलपीजी का प्रभाव ये हुआ सर कि जो एक्शन का, गोला का, लिबर्टी का जूता हमारी इंडस्ट्री बना के बेचती थी, वो रीबॉक के सामने, नाइकी के सामने, प्यूमा के सामने सिसकने लगी, वेंटिलेटर पे गई और उसके बाद बंद हो गई. हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर जो नरूलास नाम का एक जॉइंट होता था जो फास्ट फूड इंडस्ट्री को बेचता था, वो मैकडोनल्ड, डोमिनोज और अंकल सैम के पिज्जा के सामने सिसक गया, रो गया, बंद हो गया. उसका कोई जिक्र नहीं है. इसी प्रकार से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कई सारे नाम उस टाइम पे हुआ करते होंगे सर, आप भी जानते होंगे, झुंझुनवाला, श्रीराम ग्रुप, सिंघानिया ग्रुप, साहू एंड डालमिया. ये सब वो बिजनेस टाइकून होते थे इंडिया के, जो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते थे हमारी इकोनॉमी में. वो सब आज कहाँ हैं? वो या तो इतना सा साइज उनका हो गया या वो खत्म हो गए. उनका कहीं उस पूरे के पूरे कैनवास पे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो है ही नहीं. ऐसा साकेत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि तात्कालिक सोच से ग्रसित है. और जो बात आपने कही
एलपीजी के पहले और एलपीजी के बाद। रजत जी, मैं आपका तुरंत आपका एक कमेंट चाहता हूं जो साकिब ने कहा है। रजत जी कहाँ है? आर यू लिसनिंग टू मी सर? रजत जी, साकिब कोठारी साहब, मैं बिल्कुल हूँ। और सर साकिब जी ने जो बात कही है बहुत सही कही है, क्योंकि इंडियन जर्नल मेंटेलिटी एज ए ट्रेडर ज्यादा हुई है, लॉन्ग टर्म उनके विजन बहुत कम है। हमारे मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स वो क्विक पैसा चाहते हैं, और वो निश्चित रूप से उनके हिसाब से कोई भी प्रोड्यूस करे, दे आर हार्डली बॉदर्ड उनको ट्रेड करके। तो जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इन इंडिया, मैं उनको आज ट्रेडर्स कहूंगा, बहुत कम लंबी सोच या इंडस्ट्रियल अप्रोच के हैं, क्योंकि वहां पे उनको इंटरनेशनल कंपटीशन भी प्रिवेल करना, हेड ऑन लेना पड़ता है। सो फुली विद सिंक विद साकेत जी। संजय जी, अगर इसको हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो हाउ मेनी बैंक्स आर देयर दैट वी इन इंडिया विच आर ग्लोबल बैंक? एसबीआई को हमें जोड़ तोड़ करके बना तो दिया ग्लोबल, पर उसका काम लोकल भी ठीक नहीं चल पाता है। संजय जी, योर कमेंट, बिकॉज यू हैपन टू बी एक्सपर्ट फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। There is no global bank in India. Yeah, there is no global bank. There was a one bank called Global Trust Bank. Global भी चला गया, ट्रस्ट भी चला गया, बैंक भी खत्म हो गया, if you remember. जी, I remember well. हमारा जो लार्जेस्ट बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट रैंक some 115 116 on world ranking in a banking sector. और टॉप 10 बैंक्स में से 7 बैंक्स चाइना के हैं। तो इवन अमेरिका को बीट कर दिया चाइना ने भी। तो हमारे यहाँ बैंकिंग में अगेन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, हमको एक लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना है। हमने बहुत सारे अभी मर्जर किए हैं। नाउ आई थिंक सम एक्शन इज हैपनिंग एटलीस्ट, कि कुछ एक बैंक्स मर्ज हुए हैं, अब एक कुछ मेगा एंटिटीज क्रिएट हो रही हैं। जहां हम 25 बैंकों के साथ ऑपरेट कर रहे थे, अब शायद वो 5 या 6 हो जाएंगे। जी, स्टेट बैंक हैज आल्सो बिकम अ लार्जर। पर संजय जी, कोई भी बैंक ऑफ चाइना के स्केल पे नहीं होगा, कोई भी बैंक ऑफ अमेरिका के स्केल पे नहीं होगा। मैं एनके जैन साहब से एक इस पे कमेंट चाहूंगा कि जो संजय जी कह रहे हैं, जो रजत जी कह रहे हैं, और जो साकेत जी ने बात उठाई है कि भाई हम लोग बहुत एक ट्रेडर मेंटेलिटी के हैं। हम वो स्कूटर का जो अलॉटमेंट लेटर बेस पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, बनिस पर स्कूटर खरीद कर उसको चलाए और उससे कुछ पैसा जनरेट करें। जैन साहब प्लीज देखिए, जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं लाइक चाइना से या अमेरिका से, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है और उनके कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे है। जी, जिस लेवल पे हमारी इकोनॉमी है उस हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर, ये परफॉर्मेंस की बात नहीं आ रही है सर। सर, यह बात आ रही है कि are we global in nature and operation? That's the only issue. We are not talking about. अभी ग्लोबल लेवल पर पहुंचने में हिंदुस्तान को टाइम लगेगा सर। इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, और जब सोच बदलेगी ना तभी नजरिया बदलेगा। कारण क्या है कि अभी जैन साहब, मैं आपसे वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हम 47 में इंडिपेंडेंट हुए। हम सर्विस सेक्टर में बहुत लेट एंटर किया है हमने। हम पहले केवल एग्रीकल्चर बेस थे, उसके बाद इंडस्ट्री, कुछ थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बेस हुए। सर्विस सेक्टर में हमने बहुत लेट एंटर किया है। मैं आपको एक डाटा देना चाहूंगा, अगर कोई मजदूर कृषि में अपना योगदान देता है तो उसकी उत्पादकता 1 रुपया होती है। वही अगर उद्योग में अपना योगदान देता है तो उसकी उत्पादकता 3.5 रुपए हो जाती है। वही सर्विस सेक्टर में आता है तो वो 4.5 रुपए पे होता है। हमें ग्लोबल होने के लिए सर्विस सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि अब तो लोग जा रहे हैं, आधे लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब अगर ग्लोबल सोच करनी है, ग्लोबल कंपनीज लानी है, ग्लोबल बैंक्स लाने हैं, तो सर्विस सेक्टर को प्रमोट करने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट। आशुतोष, listening to me please. How do you react to the word of wisdom as pronounced by Saket ji, Rajat ji, then Sanjay ji, and of course Jain साहब? How do you react to this word of wisdom कि भाई ग्लोबल होने के लिए एक सोच बदलनी है? या यूं समझ लीजिए कि आज हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है आपके हॉस्पिटल के अंडर कि एक ग्लोबल, ट्रूली ग्लोबल बन जाए, विदाउट कोलैबोरेशन, विदाउट जॉइंट वेंचर, नॉट इवन आईटीसी, दे हैव सम काइंड ऑफ कोलैबोरेशन विद समवन। सो हाउ डू यू फोरसी? क्योंकि हम अब ये बात ये नहीं कर रहे हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू द इकोनॉमी। यस, वी अंडरस्टैंड इकोनॉमी विल बाउंस बैक, विल ग्रो बैक,
but then how will grow back and what will be scenario? Let's talk about the sector to which you belong to. Ashutosh. So I completely what Mr. Jain is saying is right, that we need to become global. But this was my perspective before the COVID era. Right now, Okay. I'm because everything is so much make in India, do in India, khud manufacturing karo. For example, I have a lot of imported items coming from my hotels. Thai curry, ye matlab aapke baby corn and all that. It's all imported. But now the import is not happening. So how do I get these products? And I can only get these products if someone in India is making these products. So I would now not focus on going global, but rather I would focus on sticking to make in India, because that is what our economy needs right now. Agar economy will, if industries pop up, if manufacturing becomes better, if services come in, then we'll be able to generate more taxes, give it to the government, and the government will be able to do a better job. साकेत जी, आपने एक बहस छेड़ी है, आपने वो बजाज स्कूटर से लेकर अब आप बजाज स्कूटर तो पुरानी बात हो चुकी है, अभी भी आप अपने आप को किसी जयपुर के सिटी पैलेस के किसी पोते खाने में आपने आपको कैद कर रखा है, उसे बाहर निकलिए और बदलती दुनिया को देखिए। आप मर्सिडीज का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है, आप वंडरफुल कार्स हिंदुस्तान में आपकी बन रही है, और पर कभी सुनने में आता है कि जो मेक इन इंडिया था वो मेड इन इंडिया बना, फिर अब एक नारा लगता है आत्मनिर्भर बनो। तो आपको लगता है कि ये जो सिनेरियो आ रहा है कि बी सेल्फ रिलायंट इंडिपेंडेंट बनो, और एक तरफ हम लोग जो धीरे धीरे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, राइट फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर टू टॉयलेट पेपर, हम सब कुछ बाहर से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ओवरनाइट इट विल टर्न आउट टू बी आत्मनिर्भर एंड काइंड ऑफ दिस थिंग्स एंड विल बाउंस बैक? साकेत जी, हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स? सर, मेरी बात पहले भी पूरी हो नहीं पाई थी, मैं यही सब इसी जगह पे आना चाह रहा था, बट वो बीच में सब लोगों के व्यूज आ गए, वो बहुत अच्छा लगा। बात यहाँ ये है सर कि इंडिपेंडेंट बनो, तो इंडिपेंडेंट बनने का एक तरीका तो वही है कि आप लाइसेंस देने बंद कर दो, ठीक है। नाउ इट इज अ मार्केट ड्रिवन सिचुएशन। अगर आज ये गोयल साहब अगर अपने होटल के अंदर स्वीट कॉर्न बाहर से मंगा रहे हैं और ये कहते हैं कि अब मैं हिंदुस्तान का या जयपुर का बना हुआ स्वीट कॉर्न खरीदूंगा और अपने कस्टमर्स को खिलाऊंगा, और अगर उसके अंदर वो स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे, अगर उसके अंदर वो सब चीजें क्वालिटी होगी नहीं, तो कौन सा कस्टमर इनका स्वीट कॉर्न खाएगा? मेरे को नहीं लगता कि वो खाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है सर, गवर्नमेंट का जो एक फ्रेमवर्क है ना, पॉलिसी फ्रेमवर्क, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क अपनी जगह पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, विजनरी है, गाइडिंग फोर्स है। लेकिन उसके नीचे जब अपन एसएमईज की बात करते हैं, एक नॉन फॉर्मल सेक्टर की बात करते हैं, एक उस छोटे सेक्टर की बात करते हैं जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो वहां पर हमें उस बड़ी अम्ब्रेला के नीचे छोटी अम्ब्रेला, आइसोलेशन में छोटी अम्ब्रेलास बनानी पड़ेगी, उस फ्रेमवर्क की अम्ब्रेलास बनानी पड़ेगी, और उसमें हमें स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक ऐसा थोड़ी होगा कि मैं टिकटॉक को बंद कर दूंगा तो मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा। मेरे राउटर में, इंटरनेट के राउटर में परसों एक प्रॉब्लम हुई और उसका अडेप्टर फूक गया। मेरे को वो अडेप्टर ऑनलाइन खरीदना था, मैंने जाकर के जो लोकल आपका जो इंडियन ई कॉमर्स की वेबसाइट से वहां पे गया, वहां मेरे को सोल्यूशन नहीं मिला। 12 वोल्ट का 1 एम्पियर का अडेप्टर खरीदना नहीं है वो मुझे, मेरे को अमेजोन पे जाना पड़ा और अमेजोन ने मुझे 199 रुपए में दे दिया, 205 रुपए मैंने दिए और मेरे को परसों उसकी डिलीवरी कर देगा वो। क्यों नहीं? मैं कैपेसिटी बिल्डिंग की बात क्यों नहीं करता? मैं क्यों बात करता हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी खराब है, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। जो मेरे पास गवर्नमेंट ने मुझे करके दिया है, मैं उन रिसोर्सेस को क्यों नहीं रीअलोकेट करके, क्यों नहीं उसको रीडिप्लॉय करके अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करता? क्यों नहीं कर सकता मैं इस तरह की वेबसाइट डेवलप? सी स्कीम के लिए, सी स्कीम जहां पर मेरे ख्याल से 10 लाख फैमिलीज रहती होंगी, मैं मानता हूं 10 लाख की पॉपुलेशन रहती होगी, क्यों नहीं मैं एक अमेजोन सी स्कीम का बना दूं, जो मेरे को सुबह की सब्जी से लेकर के शाम जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है। सर, आज इट इज अ मार्केट ड्रिवन सिचुएशन, मार्केट को जो चाहिए आपको वो देना होगा, और अगर आप वो नहीं देंगे तो आज की तारीख में बजाज स्कूटर अगर पूरे फोर्स से आ जाए ना तो नहीं दिखेगा वो, क्योंकि इट इज अ मार्केट ड्रिवन फोर्स। मेरे को जो खरीदना है, आज आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप उस यूथ के लिए, उस छोटी बच्ची के लिए जिसको आप सेगमेंटेशन करते हैं, उसके लिए आप पर्पल कलर का स्कूटर बनाते हो, आप लाइट वेट स्कूटर बनाते हो जिससे कि वो उसको यूज कर पाए। क्यों करते हो? क्योंकि आप बेटर वैल्यू डिलीवर करना चाहते हो। हम इंडियन इंडस्ट्री जो है, जिस हम इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो प्रोटेक्शंस में जीना चाहती है।
वो ये चाहती है कि मुझे चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिल जाए, वो खुद तो कुछ करना ही नहीं चाहती। आपकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, आपने मनरेगा बना दिया, मनरेगा में आप उस जो लेबर है आपकी, जो कि आपकी मेन, जो अभी मेरे को रजत जी की बात बड़ी कमाल की लगी, उन्होंने बोला कि साहब स्किल्ड लेबर की जरूरत है, हमारे पास इतनी सारी लेबर है, हम उस लेबर से काम ही नहीं कर रहे, हमने तो उसको और पंगु बना दिया, वो गांव में ही बैठा हुआ है, वो मस्ट्रोल से पैसे लेता है और 25 दिन में से 20 दिन मतलब दारू पीता है और पैसे कमाता है और घर पे रहता है, वो काम भी करना नहीं चाहता। हमारी पॉलिसी उसको सपोर्ट नहीं कर रही। जो हमारी इंडस्ट्री है वो ट्रेडर बन के जीना चाहता है, वो लॉन्ग विजन में सोचना नहीं चाहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर इस तरह की जो चर्चा है उसके अंदर हम इस वाले थॉट को असर्टेन करें और स्थापित करें, एस्टेब्लिश करें कि कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच के अंदर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव लेके आना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि हम उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें ही करें, हम क्यों करें उतनी बड़ी बात, हम छोटे स्तर पे छोटी बात क्यों नहीं करें, और छोटे स्तर पे हम उस छोटी इंडस्ट्री को क्यों नहीं ग्रोथ का रास्ता दिखाएं सर। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस एंड से। थैंक यू साकेत जी। रजत जी, मुझे आपके रिएक्शन चाहिए दो बातों के ऊपर। पहली बात में जो आपसे हम रखना चाहता हूं, we are driven by market forces. Therefore, market efficiency will determine shape and size and of course destiny of industry. Number two, जो आपने एक स्किल लेबर की बात करी थी, हमने इतने सारे स्किल सेंटर खोल दिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, and we open n number of skill center throughout the country. And उनका क्या हर्ष हुआ या उनका क्या हाल है, that is known to all of us without saying this one. Therefore, how do you foresee what will it take to make India as efficient market player? Because market efficiency comes to mind. Size matter करता है, technology matter करती है, और हमारे यहाँ से technology upgradation, technology innovation, I really don't think so. We pay any premium to it. Please react. थैंक यू कोठारी साहब, आपने बहुत सुंदर दोनों पॉइंट टच किए। पहली चीज, मार्केट कंडीशन हर इंडस्ट्री के लिए सेम प्रिवेल करती है। तो यहाँ हर इंडस्ट्री की लीडरशिप स्किल वो रियल टेस्ट पे होती है। एंड पोस्ट कोरोना और कोविड सिचुएशन अल्टीमेट टेस्ट उन लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स का होगा हर इंडिविजुअल्स की, हर इंडस्ट्री में। जो मेरे हिसाब से 3-4 इंपॉर्टेंट फोर्सेस रहेंगी, जो इंडस्ट्रीज रेडी टू चेंज होंगी, जो डिसिप्लिन से मूव कर रही होंगी हिस्टोरिकली और आगे भी और डिसिप्लिन को एनफोर्स करेंगी, और बिजनेसेस जो ज्यादा लिवरेज नहीं होंगे, वो लिवरेजिंग भी डिसिप्लिन का एक पार्ट है। और हु विल अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज, दे आर ओनली नॉट ओनली गोइंग टू सर्वाइव बट सर्टेनली। आई एम इन द वेबिनार सर। सो कोठारी साहब, सेकंड पॉइंट आपने जो बताया कि लेबर फोर्स का और स्किलिंग का एक बड़ा डिफरेंस है। जब तक स्किलिंग ट्रू बॉटम ऑफ द पिरामिड तक नहीं पहुंचेगी, एक छोटे छोटे नोडल सेंटर से बना देने के और कागज की खाना पूर्ति करने से कुछ नहीं होगा। साकेत जी ने मेरा दिल टच करा, बहुत सुंदर। मनरेगा और विजिविज स्किलिंग सेंटर, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जब तक आप लेबर फोर्स को ट्रू इकोसिस्टम नहीं दोगे जहां पे कि वो इंडस्ट्री एक्सपोज हो, रोबोटिक्स की बात हो, वो मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन में अपने आप को स्किल सेट करे, लाइक चाइना, उसमें कहते हैं कि साहब वहां की लेबर महंगी है बट स्टिल हाईली प्रोडक्टिव। द रीजन ओनली कि वो लोग वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर चुके हैं और करने की इच्छा रखते हैं जहां पे कि प्रोडक्टिविटी ग्रो होती है, ना कि हम खाली यहाँ बॉडीज गिन रहे हैं। सो दिस बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे हिसाब से आगे आने वाले टाइम में स्किलिंग, और अब नेशनलिज्म भी हर कंट्री में काफी ज्यादा पॉपअप होगा, ट्रैवल रिड्यूस होगा, गवर्नमेंट सर्वेलेंस बढ़ेगा, और जो ये अवेलेबल कैश और जो कॉम्पनसेशन लो होंगे, तो वहाँ स्किलिंग कैन ओनली मेक द बिग डिफरेंस। यहाँ पर आई थिंक आई लाइक टू इनवाइट एनके जैन साहब, जो एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर को भी सुपरवाइज करते हैं। जैन साहब, हाउ डू यू रिएक्ट टू दी टू डिफरेंट इश्यूज? देखिए, एक तरफ स्किलिंग की बात हो रही है, कहा था साकेत जी ने भी और रजत जी ने भी मनरेगा का। मैं समझता हूं देश में जब तक मनरेगा को प्रोडक्टिविटी से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये देश सफल नहीं हो सकता किसी भी तरह की इकोनॉमी में।
वहां प्रोडक्टिविटी कुछ है ही नहीं, एक तरीके से आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं उनको। तो एक तो मनरेगा को प्रोडक्टिविटी से जोड़ना चाहिए, उनकी अपस्किलिंग रीस्किलिंग करके उनको इंडस्ट्री से जोड़ना चाहिए, और इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में सरकार को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको एक अभियान चलाना चाहिए। सिर्फ मट्टी उठा के तालाब बनाना या कुआं बनाना या सड़क पे मट्टी डालना मनरेगा में, इसके अलावा मैं समझता हूँ और कोई काम होता नहीं है। उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो है। कल मैं सचिन पायलट जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि राजस्थान में 50 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया गया। ये कोई अच्छा स्टेटमेंट है? मैं समझता हूँ इकोनॉमी के लिए इससे निगेटिव स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। वो खुद की तारीफ कर रहे हैं उसमें, ये तारीफ की बात नहीं है, ये है। ये आपको उसको प्रोडक्टिविटी से जोड़िए, उनको इंडस्ट्री से जोड़िए, उनको स्किलिंग से जोड़िए। जब तक आप 8वीं क्लास से स्किल एजुकेशन शुरू नहीं करेंगे तब तक आपके यहाँ स्किल्ड मैन फोर्स पैदा नहीं होगी। हमारे यहाँ जब कॉलेज पास करने के बाद बच्चा सोचता है कि अब कुछ स्किल में भी पढ़ लूं, तब वो स्किल, मतलब उसका दिमाग तब स्किल की तरफ जाता है जब जॉब नहीं मिलती। और अगर जॉब मिल गई तो स्किल की वो सोचेगा ही नहीं। स्किल का हमें बचपन से सोचना चाहिए। डिग्री को छोड़ दीजिए, डिग्री एजुकेशन बेकार है बिल्कुल देश के लिए। अब स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैन साहब थोड़ा धीरे बोलिए, हमारी यूनिवर्सिटी बंद कराने की इच्छा थोड़ी रखते हैं आपकी, भाई डिग्री बेकार है। सर आप भी स्किल में थोड़ा मेहरबानी करिए। सर मल्टी स्किलिंग का जमाना है, आपको डिग्री के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दीजिए उनको, व्हाई नॉट? जी, आप दो मैं आपको मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारी यूनिवर्सिटी ने बी वॉक रिटेल शुरू करा है स्किलिंग के महत्व यही को समझते हुए। यही चाहता हूँ सर, जिसके पास डिग्री हो उसके पास वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो, स्किल ट्रेनिंग भी हो। आज समझिए, मान लीजिए मेरे घर पे मैं किसी मैकेनिक को बुलाता हूँ, यदि उसको एसी का भी आता है, फ्रिज का भी आता है, नल का भी आता है और रंग रोगन भी आता है, मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा या किसी एक काम जानने वाले को प्रेफरेंस दूंगा? डेफिनेटली जिसको 4 काम आते होंगे उसको मैं। तो मल्टी स्किलिंग इज द टॉक ऑफ द, मतलब नीड ऑफ द आवर, नॉट टॉक ऑफ द नीड ऑफ द आवर। इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर एक ऑब्जर्वेशन सामने आ रहा है, हाउ कैन वन लुक फॉर ओन स्टार्टअप सिंस लिक्विडिटी इन द मार्केट इज लेस? मेरे ख्याल संजय जी कैन आंसर इट। संजय जी, एक स्क्रीन पे सवाल आ रहा है। या ओके, मार्केट में लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है जी, अच्छे लेने वालों की कमी है। राइट। रजत जी, हाउ डू यू रिएक्ट? मैं बिल्कुल कोठारी साहब, बड़ा इसमें हमेशा मैं एंटरप्रेन्योर्स को, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ एज ए एंटरप्रेन्योर स्टार्ट की, हमेशा एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ और बड़ा सुंदर है। चंपक बचपन में आया करती थी, हम बड़े बड़े शिद्दत से उसको पढ़ा करते थे। उस जमाने में टेलीविजन नहीं होता था, आपको ध्यान होगा। तो चंपक में बड़ा सुंदर कार्टून था कि एक हवाई जहाज खड़ा है और पास में रॉकेट खड़ा है, और हवाई जहाज रॉकेट की तरफ मुंह करके देख रहा है और कह रहा है, यार कमाल है, मैं पूरा जोर लगा के उड़ता हूँ, इतना ही ऊपर जा पाता हूँ, तू तो कमाल ऊपर चला जाता है कुछ सेकंड में। तो रॉकेट उसको कह रहा है कि बेटा, जब पीछे आग लगी हो ना तो अपने आप आदमी ऊपर चला जाता है। स्टार्टअप में ओनली एंड ओनली द फायर ओनली मेक्स द चेंज। यहाँ कोई लिक्विडिटी, कोई डेड वॉल सामने, कोई टेक्नोलॉजी क्रंच क्राइसिस कोई मैटर नहीं करता। ओनली द एंटरप्रेन्योर की एक पैशन, दैट्स इट। मतलब आप ही चाहते हैं कि आप आके गरम गरम तवे बैठ जाओ, अपने आप आदमी उछलना शुरू कर दे, दैट यू वांट टू सजेस्ट? उसमें फिर ये एंटरप्रेन्योर को अकल होनी चाहिए कि किस तवे पे बैठना है और कहां से कूद के दूसरी। वेल सेड सर। एक सवाल और सामने आ रहा है, हाउ मेड द बिजनेस ऑफ ट्रैवल, if it is for travel leisure or travel of business, how do you think is going to change post COVID? Ashutosh, you can answer it. Ashutosh? हेलो। या सो मैंने पहले भी आपको बोला था दैट मेक इन इंडिया विल हैपन, सो डोमेस्टिक टूरिज्म विल डेफिनेटली इंक्रीज। क्या होता है कि 2 महीने आप अगर लॉकडाउन में रह रहे हैं तो बहुत it affects you mentally and emotionally. You want to go in a different environment. You want to, like, my properties, Ananda properties have a lot of nature. So we started promoting a lot of nature. कि आप जाइए, you have those birds chirping and oxygen. And definitely we are keeping sanitization and hygiene in mind. No doubt about that. But domestic tourism होगा। उदयपुर का आदमी पुष्कर जाएगा, पुष्कर का आदमी जयपुर आएगा, we'll go to Jaisalmer. This traveling will happen for sure.
Right, sir. Coming to Dr. Saket Mathur. साकेत जी कहाँ चले गए? आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें करी, ज्ञान की बातें करी। अरे सर मैं तो यही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा? अच्छा, नहीं हो, राइट। अब आप ही के लिए सवाल में दे रहा हूँ, एनी व्यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, विल इट बी ऑन ट्रैक सून? ऑटोमोबाइल, आपने बजाज स्कूटर की बात करी थी, तो अब एक सवाल है, ये वर्गीज का सवाल है। वर्गीज सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वापस पटरी पे आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी ना सर, क्यों नहीं आएगी? सब कुछ नॉर्मल होगा ही होगा सर। अभी तो इस अच्छा सर, अब न्यू नॉर्मल के केस में सब कुछ नॉर्मल होगा, बस उसकी परिभाषाएं थोड़ी सी चेंज हो जाएगी सर, मुझे ऐसा लगता है। और बस हमें सिर्फ इतना सा ही करना है कि इस न्यू नॉर्मल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है सर, उस न्यू नॉर्मल के हिसाब से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, बस सिर्फ इतनी सी बात है मेरी तो। रजत जी कहते हैं, रजत जी एक चीज हम अक्सर सिखाते हैं, he who can read balance sheet is financial wizard, he who can read writing on the wall is not a person but a super person. Please react, what is going to take place in industry से automobile? एक सवाल मेरे सामने है, रजत जी। हम लोग रिसाइकलिंग में हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत नजदीक से उसको ट्रैक भी कर रहे हैं। तो साकेत जी, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। ओवरऑल कैश फ्लो सिनेरियो इंडिया का श्रिंक होने जाएगा पैरेलली ग्लोबली, और वो डिटरमाइन करेगा बाइंग और परचेजिंग पावर को। जो लोग जस्ट वर्ज पे थे अपने कारों को बदलने में, वो भी अब थोड़ा झिझकेंगे, टाइम लेंगे। सेकेंड, हम कार बैटरीज के लार्जेस्ट रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हैं इंडिया के, और वर्ल्ड ग्लोबली अराउंड 10th। सो वी अंडरस्टैंड 10 से 15% ऑटोमोबाइल मार्केट श्रिंक होगा इन टोटल। आगे के 3 क्वार्टर की हम बात करें, बट हाँ, बॉटम ऑफ द पिरामिड के कार्स हैं या टू व्हीलर्स हैं, वो कुछ समय के लिए ग्रो कर सकती हैं, जैसा आपने साकेत जी ने जरूर कहा, बट जो कॉस्टली अफेयर्स हैं वो सब श्रिंक करेंगे। सर एक सवाल और यहाँ पे आ रहा है, people rediscovering the good old kirana store in COVID did you see that what fundamentals food process producing industry need to change some of allocations to get business forward? I think इनके जैन साहब आप इसको प्लीज रिएक्ट करें इसके ऊपर। जैन साहब, आई थिंक जैन साहब ऑडिबल नहीं है मुझसे। रजत जी, यू कैन टेक दिस कॉल। नहीं, हाँ, अब आती है मेरी आवाज? आ रही है सर, आ रही है, आगे सर, आगे। हाँ, बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, जो फूड इंडस्ट्रीज है उनको बहुत तेजी से सेफ्टी फूड इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट आज रोज आप व्हाट्सएप पे पढ़ रहे हो कि इसको खाने या पीने से आपको कोरोना से मुकाबला करने में इम्यूनिटी बढ़ेगी या सेफ्टी रहेगी या कोरोना आपके नजदीक नहीं आएगा, तो उन बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, उसमें काफी प्रोडक्ट राजस्थान में पैदा भी होते हैं। अगर हम राजस्थान के परव्यू में देखें तो निश्चित रूप से फूड इंडस्ट्री में एक तो ऑनलाइन का चलेगा, बहुत ज्यादा ऑनलाइन आपको लेना पड़ेगा। सेकेंडली, ये जरूर इन्होंने जो लिखा है कि जो किराना स्टोर से और कोविड के समय जो आपके नजदीक, घर के नजदीक जो दुकान थी, उसने सपोर्ट किया है, तो सेंटिमेंटली लोग उससे जुड़े हैं। और वापस एक जो ताना बाना था हिंदुस्तान का कि भाई लोग सामाजिक रूप से जुड़े रहते थे, वो वापस पैदा हुआ है, और उन दुकानदारों को, उन किराना स्टोर्स को भी काफी फायदा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे नए प्रोडक्ट निकल के आए हैं। मैं खुद घर पे देख रहा हूँ, रोज कुछ ऐसी नई चीज आती है, और वो घर पे जो मिसेज हैं, जो लोग फूड खाना पकाती हैं, वो कहती हैं जी आप ये चीज लीजिए और इसको खाने से आपको बड़ा आराम रहेगा और कफ नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा, कोरोना से बचे रहोगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो ये फूड इंडस्ट्री में भी बहुत मेजर चेंज आने वाला है सर। जैन साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना का रोना इतना हो गया है कि आजकल वो टीवी देखना बंद कर दिया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे हिसाब से कोरोना का रोना इतना होना ही नहीं चाहिए था। इसको मीडिया वालों ने बता दिया सर। आज भी अपने हिंदुस्तान में जो डेथ रेट है 0.01% है, जो चेक हो रहे हैं उसमें हो क्या रहे हैं, 1 लाख लोगों को आप रोज चेक कर रहे हो। इस तरह से 36 साल लगेंगे आपको पूरे हिंदुस्तान को चेक करने में। अपने में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना हो गया था और वो ठीक भी हो गए अपनी इम्यूनिटी के बदौलत, और उन्हें पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ और ठीक भी हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं।
That's amazing, sir. एक सवाल मेरे स्क्रीन पे आया है, कैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चेंज द इकोनॉमी? रजत जी, मेरे ख्याल से यू कैन आंसर इट बेटर. कैन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चेंज द इकोनॉमी? श्योर सर. ये ध्रुव वाजपेयी ने सवाल पूछा है. हाँ, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कॉमर्शियली जिनकी वायबिलिटी हमेशा क्वेश्चन मार्क रहती थी, जिनका रीपेमेंट्स बहुत लंबे होते थे और जहां बड़े फंड्स की नीड होती थी, निश्चित रूप से वहां पब्लिक पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और वो आगे चलती रहेंगी सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंटली लाइसेंस वो अवॉर्ड करे, जॉब्स और प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड करे और उनको कॉमर्शियली वायबल बनाने के लिए प्रॉपर सारा इकोसिस्टम सेट करे. इट सर्टेनली फॉर इंडस्ट्री, फॉर द कंट्री जहाँ की भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में बहुत पोटेंशियल है, ये मॉडल काफी बड़ा रोल प्ले करेगा फॉर एटलीस्ट फॉर ए डिकेड. दिस माय थिंक. I would like to add something. Abhi, just the government has privatized space. You can use ISRO facilities to, you know, do your own space research and make rockets and go to space, which is fantastic. तो अभी because पहले बहुत सारे restrictions थे, लोगों को नासा जाना पड़ता था. अब इंडिया के जो मतलब जो स्पेस में इंटरेस्टेड है, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है, they can do so much more because of this venture that the government has taken up. Well said. मेरे स्क्रीन पे एक सवाल आया है, ये अरविंद कुमार शर्मा ने पूछा है, हाउ फार न्यू एरियाज फॉर स्टार्टअप आफ्टर पैंडेमिक एक्सेप्ट फेस मास्क एंड PPE किट? रजत जी, you being industrialist, you are not a trader, you are not a what I can say, so as an industrialist. हाँ, सारी चीज अरविंद जी जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं, सब में बिजनेस है. हर चीज में बिजनेस करा जा सकता है, सब्जेक्ट टू अगेन your capability, your set of skills, your commitment towards that business. So post COVID बहुत सारी opportunities बहुत बड़े ओपन तरीके से ओपन रहेंगी. So you are welcome to jump any into it with the proper background surveys and your wishful thought. Great. प्रज्ञा जोशी ने एक सवाल पूछा है, sir, what do you think how the problem of labor will be solved as they move back to their hometown from metropolitan cities after losing job? How their confidence to work there again can bring back? NK जैन साहब, प्लीज को जवाब दीजिए आप, क्योंकि आपने बहुत बातें करी हैं स्किल की, इन सबकी. लेट अस प्लीज, वो लेबर भाग गया. जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी की जो मेन धुरी होती है वो लेबर ही होती है सर जी. कल मैं एक 4 लाइन मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी. वो जवाब से पहले मैं वो दोहराना चाहूंगा कि लेबर गई क्यों यहाँ से. जो उसूलों से लड़ी होगी वो जरूरत बहुत बड़ी होगी. एक भूखे ने कर ली मंदिर में चोरी, शायद भूख भगवान से बड़ी होगी. वाह वाह. तो आप ये देखिए जो लेबर यहाँ से गई है, उनमें 2 रीजन हुए हैं. एक तो उनके मन में इतना भय हो गया कोरोना से, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे कि भाई पता नहीं हम यहाँ रहेंगे, इससे अगर मरना ही है तो घर पे चले जाएं, घर जाके मरे, यहाँ भी रह के क्या तीर मार लेंगे. Sir, having said this, how will bring back to the work, sir? सर मैं उसी पे आ रहा हूं. मैं यहाँ से एक मैसेज आपको और देना चाहूंगा, जो भी व्यूअर्स हैं उनको भी ये देना चाहूंगा. जो लोग यहाँ से चले गए हैं, आज भी इंडस्ट्री ये इंतजार कर रही है कि जो उनकी लेबर माइग्रेट कर गई है, अगर वही वापस आती है तो पहला जॉब पे अधिकार उसका है, पहले वो उसको अपने यहाँ जॉब देंगे. अगर वो नहीं आता है, किसी कारणवश अपने गांव में ही रह जाता है, तब हम सोचेंगे किसी दूसरे को जॉब देने के लिए. निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने मेरे यहाँ जिस व्यक्ति ने मेरे यहाँ 10 साल 15 साल जॉब किया है, मेरी कंपनी को अपनी सेवाएं दी हैं, इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं दी हैं, वो यदि वापस आता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी होगी उस लेबर को, उस कर्मचारी को अपने इंडस्ट्री में जॉब देने पे. जो माइग्रेंट लेबर लौट के आई है, जो वहां से चले आए, राजस्थान में आ गए मान लीजिए, उनके लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा कि उनके साथ कि उनको जॉब किस तरह दी जाए. उनकी रीस्किलिंग, अप स्किलिंग जो बात हो रही है, राज कौशल पोर्टल का भी 2 दिन पहले लॉन्चिंग हुआ है, उस पर सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वहां पर इंडस्ट्री भी पार्टिसिपेट कर रही है, हर इंडस्ट्री भी उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रही है. और जैसा जरूरत पड़ने पर अपन एयरलिफ्ट भी कर लेंगे लेबर्स को, जैसे कि बिहार से हुए हैं लेबर. सर हमने एक सवाल जी, सर हमने एक सवाल करके भेजा भी है, तो बुला भी सकते हैं एयरलिफ्ट. राइट, वेल सेड सर.
एक सवाल निशा राठौड़ ने पूछा है, डिड गवर्नमेंट मेड राइट डिसीजन बाय गिविंग मोरेटोरियम टू बैंक्स? Sanjay ji, as a banker, as a person expert in financial sector, please take up this call. My personal opinion is it's not a right decision to give a blanket moratorium. It should have been some specific guidelines, say hotel industry, tourism industry, or maybe certain industries can be given. But giving blanket moratorium, it is going to create problem after 6 months, because मार्च महीने से लेके अगस्त महीने तक जब तक मोरेटोरियम था, अब आपके पास किसी के कोई सिविल रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है जी। जो चीज अभी प्रॉब्लम, जो अभी हमारे बैंकों की प्रॉब्लम है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो रिस्क नहीं ले रहे, तो उनके पास 6 महीने का रिकॉर्ड नहीं होगा तो वो और ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे लोन देने के लिए। तो एक जिस आदमी ने आज मोरेटोरियम लिया है, उसको आगे आने वाले टाइम में नए लोन्स लेने में उसको समस्या आने वाली है। अगर मेरे पास एज अ लेंडर, अगर मेरे पास 2 कस्टमर लोन लेने आएंगे, जिसमें से एक ने मोरेटोरियम नहीं लिया और एक ने लिया है, तो मैं ऑब्वियसली जिसने नहीं लिया उसको दूंगा जी। यानी आपको लगता है कि मोरेटोरियम डिसीजन सही नहीं है? जी, ब्लैंकेट मोरेटोरियम डिसीजन ठीक नहीं है। इट्स गोइंग टू क्रिएट सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स इन अ लॉन्ग रन, मीडियम रन। ओके, एक सवाल जो आया है, now people are suffering with the job issues as many have been removed by the companies too in this situation. The standard of living of the people will reduce. How will this help the economy? Rajat ji, आप बताइए, आपने कितने लोगों को रवाना करा? निश्चित रूप से इकोनॉमी को कोई हेल्प नहीं करेगा, ये इकोनॉमी को श्रिंक ही कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि ओवरऑल कैश फ्लो सिनेरियोस टाइट होंगी और तो इकोनॉमी श्रिंक करेगी निश्चित रूप से। तो अक्षय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये कोई हेल्प नहीं करने जा रही, ये सिचुएशन को और पैनिक करेगी और ओवरऑल टोटल रिड्यूस करेगा, श्रिंक करेगा। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इज पेइंग 80% ऑफ द सैलरीज। व्हाई इज our government doing something similar? Today the hospitality industry has paid 10 lakh crores in the past 3 months without getting any revenue. So what options do we have than to lay off or to reduce the salaries? Okay. एक सवाल है, how much time it will take to resettle economy of India? अच्छा, हम में से ज्योतिष कौन जानता है? Who can answer it better, sir? How much time will it take to resettle economy of India? I think NK जैन साहब बिल्कुल एक मशहूर एक एस्ट्रोलॉजर नजर आ रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से आपने जो गेटअप करा है, तो ओनली यू कैन ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस आंसर सर, प्लीज। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू? जी, जैसा हमने पढ़ा और सुना है, हर 100 साल में इस तरह का एक पेंडेमिक इम्पैक्ट आता है और उससे वापस देश उभर भी जाता है। निश्चित रूप से कोरोना से भी हम उभरेंगे, इट विल टेक टाइम, नो डाउट, बट मैं समझता हूँ बट हाउ मच? आई थिंक अक्टूबर नवंबर तक शायद इसका पैनिक कम हो जाएगा और इकोनॉमी की गाड़ी जो है वो पटरी पर आ जाएगी। हमारी घर पे भी गाड़ी यदि 2 महीना खड़ी रहती है तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसको चार्ज करने के लिए धक्का लगाना पड़ता है सर। तो वो धक्का लग रहा है, सरकार अपनी, केंद्र सरकार भी लगा रही है, लोकल गवर्नमेंट भी लगा रही है, पर वो धक्का कैसे लगेगा, कब लगेगा, कितना लगेगा, उस पर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी कैसे पटरी पे आएगी। पर आएगी निश्चित, ये मैं जानता हूँ। मे बी 3-4 months मोर, वी हैव टू वेट। रजत जी, एक सवाल है, धक्का लगाने वाला और धक्का खाने वाला, अगर दोनों में तारतम्य नहीं है, we can make out we will land up eventually. So how will you going to react? कि how much time it will take for us to get back on track, sir? रजत जी, अगेन कोठारी साहब, ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। कुछ सेक्टर बहुत जल्दी रिकूप करेंगे, लाइक जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की है, या एफएमसीजी के बेसिक बॉटम जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक साबुन, तेल, ये ब्ला ब्ला, और कुछ सेक्टर जो रियल हिट होंगे लाइक टूरिज्म, ट्रैवल और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो बड़ा सब्जेक्टिव मैटर रहेगा, बट हाँ, इसी जीडीपी पे, इसी लेवल पे आने में एक नॉर्मल, एक जनरल जो इंडस्ट्रियलिस्ट सोच रहा है, वो 6 महीने से लेके नेक्स्ट 9 महीने लगेंगे, जहाँ पे कि वो
इस क्राइसिस को एलिमिनेट करता हुआ और आगे का ट्रैक देख रहा होगा कि अगला बिजनेस प्लान अगले साल का कैसे बने। तो बड़ा तो आपको लगता है कि अभी हम लोग मंजिल से थोड़े दूर हैं, इमीडिएट नहीं है, हो सकता है 6-7 महीने बाद विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पुशिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी विल गेट पुश, राइट? एक सवाल और आया है, हाउ टू रीस्टार्ट इकोनॉमी विद अ पोस्ट पैंडेमिक वर्कफोर्स, यानी वर्कफोर्स में पोस्ट पैंडेमिक में क्या चेंजेस आएंगे? आई थिंक संजय जी, रजत जी एंड के जैन साहब कैन रिएक्ट इट, बिकॉज आप लोग सब इंडस्ट्री डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। यानी पोस्ट पैंडेमिक के बाद में किस तरह वर्कफोर्स के मेंटल एटीट्यूड में या उसके डिस्पोजिशन में चेंज आप एक्सपेक्ट करते हो, वो चेंज आएगा? आई थिंक यू कैन आंसर इट सर। रजत जी, यू स्टार्ट सर। हाउ टू रीस्टार्ट इकोनॉमी? लेबर वर्कफोर्स जो है ओवरऑल वो मेजर रोल प्ले करेगी, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रीज, और जो काफी लेबर माइग्रेट कर गए हैं। तो ऑटोमेशन काफी इसको रीसेट करेगा, बट इकोनॉमी का रीसेट वर्कफोर्स के एंगल से है ना, अगेन सब्जेक्टिव, बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे डिफरेंट उसके रिएक्शन, एक्शन और टाइम टेकिंग होगा। सो मुझे लगता है कि जो ऑलरेडी इकोनॉमी में रीस्टार्ट फेज में आ गई हैं इंडस्ट्रियां, वो अगर कोई वर्कफोर्स चली भी गई है तो उसका रिप्लेसमेंट उनके पास निश्चित रूप से आ गया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की साइड से लिए उन्होंने बेसिक लेबरर्स टू स्किल उन्होंने अपने यहाँ वापस ट्रेन करने स्टार्ट कर दिया। इट इज वेरी अगेन सब्जेक्टिव फ्रॉम माय व्यू। ओके मित्रों, हमें बात करते करते 1 घंटा 11 मिनट और 31 सेकंड में हो चुके हैं, एंड लाइक एवरी गुड थिंग्स इट हैज टू कम टू एन एंड। आई थिंक इस स्क्रीन पे एक सवाल और आ रहा है, मैं उसको लेने के बाद में आई थिंक लास्ट क्वेश्चन दैट वी कैन लुक एट दिस वन ओनली। और मैं आपको 2 बात कहना चाहूंगा सर, कि अगर मैं आपसे कहूं, if you are in the seat, if you are in the cockpit, and if you are the pilot one, give me 3 steps to reboot Indian economy. I repeat, you are the pilot of Indian economy. Give me 3 concrete step to reboot economy so that we can take off and achieve escape velocity of poverty, of unemployment, of darkness. I think to begin with, I request NK Jain sahab, give me 3 steps if you're a pilot of this economy one, sir. देखिए, जब भी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाते हैं जी। तो सारी इंडस्ट्रीज को मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट गियर लग चुका है, अब आप उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ गियर में ले आइए। और जिस तरह से पहले हम लोग काम कर रहे थे, जिस तरह से इंडस्ट्री ट्रेड का एक पूरा चेन बना हुआ था, डिमांड आती थी, प्रोडक्शन होता था, सप्लाई होती थी, उस लूप को वापस, जो भी वो लूप में से एक कड़ी टूट गई है, उस कड़ी को वापस जोड़ के लाइए और वो जो व्हीकल आपका जो साइकिल है उसको कंप्लीट कीजिए। जब तक वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री या इकोनॉमी पटरी पर नहीं आएगी। तो वो बहुत जैन साहब, पहला गियर हुआ, कड़ी को जोड़िए, कंसोलिडेट करिए, मिसिंग लिंक उसको जोड़िए, मिसिंग लिंक को ढूंढ। अच्छा, दूसरा गियर क्या हुआ आपका? सेकंड गियर ये है कि हमें जो स्पेशली जो गवर्नमेंट की डिमांड्स हैं, जो गवर्नमेंट की नीड्स हैं, जो गवर्नमेंट सप्लाईज हैं, प्लस जो पीएसयूज हैं और जो बिग इंडस्ट्रीज हैं, लाइक रजत जी की जो इंडस्ट्री है वो बिग इंडस्ट्री में आती है, ग्लोबल इंडस्ट्री में आती है। इस तरह की इंडस्ट्री को एमएसएमई को सपोर्ट करना पड़ेगा, एमएसएमई को ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, उनका यदि कोई पेमेंट बाकी है तो वो इमीडिएट रिलीज करना पड़ेगा, उन्हें देख रहे, तभी देखिए, तभी वो जो साइकिल है वो कंप्लीट होगा। एमएसएमई का पेमेंट आएगा, डिमांड आएगी, वापस वो माल खरीदेंगे, फिर बनाएंगे, सप्लाई, डिमांड आएगी, फिर सप्लाई करेंगे। तो उस चेन को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। कोरोना की वजह से वो जो लिंक टूट गया है, उस लिंक को कंप्लीट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उनके ऊपर। आज भी एमएसएमई का 55% जो सप्लाईज है वो गवर्नमेंट को जाता है, रिमेनिंग जो है बड़ी इंडस्ट्रीज को जाता है। आप कहते हैं ना, एक बरगद का पेड़ होता है, उसके नीचे 100 पेड़ पनप जाते हैं। तो जो बिग इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट है वो बरगद का पेड़ है, उन्हें अपने नीचे जो पेड़ मुरझा गए थे उनको वापस सींच के वापस ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी मैं समझता हूँ। जैन साहब, एंड योर फाइनल टॉप गियर? फाइनल टॉप गियर तो यह है कि सर, गवर्नमेंट को इमीडिएटली फंडिंग पंप करना पड़ेगा। इंडस्ट्री को लोन नहीं चाहिए, उनको इमीडिएटली फंडिंग चाहिए।
जो कि सरकार के पास में सैलरी के लिए पैसा नहीं है सर, सरकार कहाँ से लाएगी सर? सर 1,03,000 करोड़ रुपया तो अनक्लेम्ड पीएफ और ईएसआई का पड़ा है, और मैं मानता हूं केंद्र सरकार के पास कभी फंड की कमी नहीं होती है सर, मैं बता दूं फिर आप, क्योंकि हमारे पास नासिक की प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास भी है, जो बड़ी आप उसको कुछ भी कहिए, स्टेट के पास कमी हो सकती है, केंद्र सरकार के पास कमी नहीं होती। आप देखें अमेरिका का एग्जांपल ले लें आप, वहां पर किस तरह फंडिंग हुई है, या यूरोपियन कंट्रीज का एग्जांपल लें, वहां कैसे फंडिंग हुई है। इट इज देयर, मंशा होनी चाहिए सपोर्ट करने की। 20 लाख करोड़ कहने से क्या होगा जब तक वो आपकी जेब में नहीं आएगा सर, बताएं आप। वो पैसा यदि जेब में आता है, इंडस्ट्री दौड़ पड़ेगी। जैन साहब, मेरे को तो 1 करोड़ ही काफी है, 20 करोड़ लाख करोड़ नहीं चाहिए मेरे को। यस थोड़ा थोड़ा बचेगा ना। अच्छा यूं, रजत जी आपके 3 टॉप गियर्स। हाँ सर, अरुण जी हम अभी पूरे कंट्री के इंडस्ट्री का पायलट होता सर, तो मेरे 3 गियर ऐसे रहते हैं कि पंपिंग मोर मनी इनटू ऑल डिफरेंट सेक्टर, स्पेशली इंफ्रा, नंबर 1। ओके, नंबर 2 इंफ्रा, हाँ, पंपिंग मोर मनी, नंबर 1। राइट, नंबर 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां एक इकोसिस्टम ग्रो हो, टू ग्रो मोर इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स और एग्रीकल्चर, एवरीथिंग। एंड नंबर 3 शुड बी द skilling at all levels, even management to the basic bottom of the pyramid, labor. तो वहां skilling is more important. So इन तीनों पे more money, then ease of doing business and skilling will certainly help the economy to boost immediately. कोठारी सर गए। हेलो साकेत जी, आप अपने कमेंट दे दो ना जब तक। हाँ, मुझे लगा कि वो, हाँ, तो मेरे हिसाब से सर रीबूटिंग में वो जो 3 पॉइंट्स की बात ये कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि एक तो वो बिग पुश स्ट्रेटेजी अपन ने सबने मेरे ख्याल से पढ़ी हुई है, वो जिसको आप जैसे वो जिसको बोलते हैं ना, वो दम लगा के हैशा। तो क्या है कि वो सब चीजें जैसे चल रही है ना, वो दम लगा के वो हैशा जो करना है ना, वो हैशा की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट शुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम साकेत जी। सर जी सर, पेंटिंग के बाद वो दम निकल चुका आदमी का, आप क्या लगाएं, तो बोले जोर लगा के हैशा। यस सर, वो बिग बुश सर, बिग बुश में क्या है कि आपको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब उसकी तरफ से भी, और खुद एंटरप्रेन्योर की तरफ से भी, इंडस्ट्री की तरफ से भी वो दम लगा के हैशा की जरूरत है, एंड दैट स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्ड मेरी नजर में, नंबर 1। नंबर 2 वुड बी द रीडेफिनेशन in terms of change. You have to redefine things looking to the changes. वो जो चीजें बदल गई हैं, वो जो बदल रही हैं, उन चेंजेस को अडेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक मायोपिया नहीं होना चाहिए हमको। अगर वो चेंज अनविलिंग है, तब भी उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है और चीजों को रीडिफाइन करना है। दिस इज नंबर 2। एंड नंबर 3 विच इज, जैसा कि अभी रजत जी ने बोला कि वो यू नीड टू पंप मोर एंड मोर रेवेन्यू एंड दिस दैट, उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंटली बोलना चाहता हूं। कैपेसिटी बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा भी वो जो देयर आर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेस जो कि आपका बिजनेस बनाते हैं, जो कि आपका एंटरप्रेन्योर बनाते हैं आपको और आपकी, तो उसमें वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, वो भी इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट डे सिनेरियो करने की जरूरत है सर। हमें थोड़ा सा उस कन्वेंशनल थिंकिंग से हटके, कुछ थोड़ा सा उस पुरानी वाली सोच से हटके, क्योंकि ये पेंडेमिक को अगर मुझे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, तो इस एक नए नजरिए से, एक नए दृष्टिकोण से सोच करके चीजों को करना होगा। तो ये 3 मेरे हिसाब से मेरे मंत्र है सर। थैंक यू। संजय जी को सुनना चाहूंगा। संजय जी, वो 3 टॉप गियर कौन से हैं आपके जो इकोनॉमी को रीबूट करेंगे? संजय जी। May I, Kothari sir? Hello, am I audible? Yeah, you're audible, sir. संजय जी, वो 3 टॉप गियर कौन से हैं जो that will reboot the economy, sir? Hello. Yes, Sanjay ji, please. Sanjay ji, I think Sanjay ji will come back to us. Ashutosh, what is your 3 top gears? The first thing I can think of is cooperation. जैसे साकेत already
he said that there will be change. We will redefine a lot of things. So it's very important for industries to cooperate and adapt to that change. अगर वो नहीं कर पाए तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. And the second thing is collaboration. Industry leaders need to come together. I think CII is a fantastic organization where industry leaders are coming together and discussing a lot of things. And the third thing I would say is transparency. We need transparency, government transparency, industry transparency, public transparency. Whatever are your approaches and views, you just lay it out there. Right. मित्रों, हमारे बीच में डॉक्टर एस.एस. जैन भी मौजूद है, हमारे वरीय सहयोगी भी हैं और हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और बहुत शांति से पिछले 1 घंटा 20 मिनट तक हम सबको सुन रहे हैं. नाउ वी हैव द वर्ड ऑफ विजडम फ्रॉम डॉक्टर एस.एस. जैन. जैन साहब. सर, सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है. बहुत ज्ञानवर्धक बातें आप सब लोगों ने बताई. मेरा एक छोटा सा निवेदन ये है कि देश में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है और जो हमारी मेंटेलिटी बन गई है कि सब कुछ हमें फ्री में मिल जाए, हमें काम न करना पड़े, इससे देश की इकोनॉमी भी सुधर नहीं सकती. जैसा जैन साहब ने कहा कि मनरेगा जैसी योजना जिसमें फ्री में पैसा बांटा जाए, केवल मिट्टी डाल दी जाए और पैसा मिल जाए, इकोनॉमी कभी सुधर नहीं सकती. वो तो पैसे में मिट्टी डालना हो गया. दे आर ट्रेन्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और पर्टिकुलर स्किल. तब तक जब तक उनकी वो स्किल का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बढ़ना बहुत मुश्किल है. तीसरा ये है कि इंडस्ट्री का रिवाइवल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस कोरोना के कारण जो परचेज पावर कम हो गई है, लोगों की नौकरियां चली गई है, पैसा पास में नहीं है, सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, वो उनको रिबूस्ट करना बहुत जरूरी है. तभी ये इंडस्ट्रीज वापस सर्वाइव करेगी. और चौथा, बिजनेस का नया मॉडल और लाना पड़ेगा कि होम्स डिलीवरी सिस्टम, जो किराना स्टोर्स हैं, फ्रूट वेजिटेबल जो भी हैं, उनको जो होम डिलीवरी सिस्टम है उसको और पुख्ता करना पड़ेगा. तो मैं समझता हूँ, क्योंकि इस समय हर आदमी डर के साये में जी रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी से टच में आ जाऊं, मेरे कुछ हो जाए. तो ये होम डिलीवरी सिस्टम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. और जो बात बिल्कुल सही है कि जो आदमी सोच रहा था कि मैं कार बदल लूं या मैं नया आइटम ले लूं, वो अभी पीछे हट रहा है, क्योंकि पैसा उसके पास अभी हाथ में है नहीं, नौकरियों की गारंटी नहीं है. इसलिए इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए यदि सरकार और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और सब लोग सहयोग करेंगे, तो जोर लगा के हैशा वाला यदि काम रहा तो भारत की इकोनॉमी वापस पटरी पे आ जाएगी. मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर अंदर हिंदुस्तान वापस पुरानी स्टेज में आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. Honorable President sir, sir, your concluding remarks. I think I know. I think, but I will like to listen to संजय जी. संजय जी, आपके 3 टॉप गियर कौन से हैं सर? संजय जी. हेलो. हाँ, आपके 3 टॉप गियर सर. Am I audible, डॉक्टर साहब? Yes sir. Yes sir. You are audible sir. You are audible sir. Yes. आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है. संजय जी, या बोलिए सर, बोलिए. हेलो. आई थिंक आई एम नॉट एबल टू हियर एनीवन, सो आई डोंट नो. नो, बट आई थिंक माय वॉइस इज नो रीचिंग टू यू. आपकी आवाज आ रही है संजय जी. Sir, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं. You are audible to all the participants sir. संजय जी, हम आपको सुन पा रहे हैं और आपको सुनने को बेताब हैं. President sir. संजय जी, अरुण जी देखिए संजय जी का कनेक्शन को क्या हुआ? नहीं, कनेक्शन सही है सर. he is audible to us sir. He is audible. संजय जी, आप ऑडियो है, बोले तो सही. अभी उनकी आवाज नहीं आ रही है सर. अभी नहीं. ओके. I think now we have been here for last 1 hour 24 minutes, more precise 24 minutes 25 seconds, sir. Wonderful talk, wonderful people, wonderful sharing of knowledge. I must thank to all the esteemed dignitaries, N.K. Jain sahab, Rajat ji,
Saket ji, Sanjay ji, and young Ashutosh. And I must thank all my colleagues at ICFA University, starting with Arun Saini ji, S.A. Jain साहब, my registrar, my other teammates who have made it possible. मैं आपको सिर्फ एक जानकारी देना चाहता हूँ. As of now, we are sitting on 870 registration for this conference, for this web conversation. This was not a webinar, this was web conversation कि हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं. मैं ICFA यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि थोड़ा समय निकालिए. मैं गुजरात तक लेकर नहीं जा सकता, थोड़ा समय निकालिए, ICFA यूनिवर्सिटी आइए, आपको अच्छा लगेगा. ये आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका सपोर्ट चाहिए इस छोटे से बच्चे को बड़ा होने के अंदर. और मेरे ख्याल से लोकल विजन, ग्लोबल डायनामिज्म सब मिल जाएंगे. ICFA यूनिवर्सिटी विल निश्चित रूप से बहुत तेज आगे बढ़ेगी. आप सभी का मैं मन से, हृदय से आभारी हूं. और संजय जी शायद अभी भी मुझे दिख नहीं पा रहे हैं. एनीवे, और रजत जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. साकेत जी आपका बहुत बहुत एंड एनके जैन साहब, आशुतोष जी, ICFA यूनिवर्सिटी आपकी ऋणी है. आपने अपना अमूल्य समय दिया और वो बहुत सारी. सर अंतिम 2 लाइन सर मुझे पहले नहीं सर, पहले मैं बोलूं अंतिम 2 लाइन. अच्छा, आपके अंतिम 2 लाइन बोल दीजिए सर. आप देखिए आपके अंदर एनके जैन साहब के अंदर जो छुपा हुआ कवि है ना, वो उछाले मार रहा है. जोर लगा के सर बोल दीजिए आप. सर बोल दीजिए. सर मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने इंडस्ट्री के बारे में, और जो राजस्थान का फर्टाइल ब्रेन है राजस्थान का, उसके बारे में. हम वो दरिया है जिनको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता सर. वेल सेड. तो ऐसी बात नहीं, हम रास्ता ढूंढ लेंगे सर. कोरोना में भी ढूंढेंगे और इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाएंगे, और फिर उसी तरह हंसी खुशी मिलेंगे जैसे पहले मिलते रहे हैं. और आपके ICFA यूनिवर्सिटी भी आएंगे, वो भी देखेंगे. और अपने कॉन्फ्रेंसेज होटल्स में भी होंगी. आशुतोष जी के लिए मैं कह रहा हूँ स्पेशली, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, वैसी ही भीड़ आएगी. ये एक थोड़ा सा दौर है जो ठीक है, हम डर रहे हैं इस वजह से, लेकिन वापस वो दौर आएगा. फिर उसी तरह जैन साहब आप ये कहना चाहते हैं कि आदमी की फितरत बदलती नहीं, समा कुछ भी हो, आप ये कहना चाहते हैं? मैं मान लेता हूँ. नमस्कार. I would like to share some data with the audience. Yes. नमस्कार. लगभग 8.5 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, और इसका तो एवरेज जो व्यूअरशिप था लगभग 180-190 के टाइम में रहा है, मेंटेन रहा है वो. और लगभग 13 से 64 में ये अक्रॉस द कंट्री, और अभी तक लगभग 9000 मिनट्स का इसका व्यूअरशिप हो चुका है. सो यानी आपको सर, आपको 9000 लोगों ने सुना है सर 1 घंटे के अंदर. मेरे हिसाब से 9000 लोग तो शायद फिजिकली हम लोग कभी मोबिलाइज कर ही नहीं पाएंगे, और शायद लोग सुन ही नहीं पाएंगे. आई थिंक मैं सभी के लिए मन से आभार व्यक्त करता हूँ. आई एम beholden to you. I feel so deeply obliged to you. A warm gratitude from ICFA University Jaipur. We are signing off सर. जल्दी हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह. खुश रहिए, अच्छे रहिए. नमस्कार. जय हिंद सर, जय भारत. थैंक यू.